Namaskar, I am Adarsh. Welcome to Adarsh Education Society. Good morning students, Standard 5. Our subject is ENP. We are learning Chapter 7, Experiments with Water. In this chapter we are going to learn about experiments with water, which things floats in water, which things sinks in water, which floats in water, which sinks in water, which dissolves in water, which does not dissolves in water. Now what floats and what sinks? Aisha was waiting for dinner. Today Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. आयशा अपनी मम्मी को पूरी बनाते हुए देख रही थी, कैसे मम्मी ने पूरी बनाई और फिर कैसे उसे हॉट ऑयल में डाला. शी सॉ दैट द फर्स्ट द पूरी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन. उसने देखा कि जब मम्मी ने पूरी डाली तो वो नीचे जाके सिंक हो गई ऑयल में, हॉट ऑयल में वो नीचे जाके सिंक हो गई. फिर जब वो पफ यानी जब वो फूल गई तब वो ऊपर फ्लोट करने लगी. As it puffed up, the puri came up and started floating in the oil. On the oil. One puri did not puff up and did not float like the others. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. She flattened it and put it in a bowl of water. Alas, it sank to the bottom and stayed there. फिर ये जब देखा तो आयशा खुद भी एक्सपेरिमेंट करने लगी. उसने थोड़ा सा डो लिया और पानी में डाला तो डो नीचे जाके सिंक हो गया, नीचे बैठ गया. In the evening, Aisha went for a bath. She had just come out when her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. फिर जब शाम को आयशा बात करके निकली तब उनकी मम्मी ने कहा कि आपने आज फिर सोप पानी में गिरा दिया है, तो प्लीज़ सोप निकाल लीजिए पानी में से. आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स. इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर. तो आयशा ने नोटिस किया सोप जो था वो नीचे सिंक हो गया था, लेकिन जब उनके हाथ से सोप केस जो कि प्लास्टिक का था वो जब गिरा तो वो पानी में फ्लोट करने लगा. आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस. शी सॉ दैट द केस कंटिन्यूड टू फ्लोट इवन विद द सोप इन इट. फिर आयशा ने उसमें क्या डाला, सोप डाला. सोप केस में सोप डाला तो क्या हो रहा था, वो सोप भी सोप केस के साथ फ्लोट करने लगा. Have you seen that something float on water like while others sink? Think how this happens. The poem here raises such questions. तो यहाँ पे हमें एक पोयम दी गई है जिसमें कुछ क्वेश्चंस रेस किए गए, उठाए गए हैं कि ऐसा क्यों होता है. Why, oh why, a wooden boat in water will float but a needle will sink. वुडन बोट जो इतनी बड़ी है वो पानी में फ्लोट करती है, लेकिन एक छोटी सी नीडल है वो पानी में सिंक हो जाती है. Why does this happen? Let me think. An iron ship will also float though it's much heavier than my boat. An iron ship will also float. इतनी बड़ी आयरन की जो शिप है वो फ्लोट करती है और मेरी बोट जो हमने पेपर की बनाई है वो सिंक हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? But a needle light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. और इतनी सी सुई जो एकदम लाइट वेट है, एकदम लीफ की तरह है, हल्की है, वो भी सिंक हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन इज हेवियर. इट इज़ हेवियर देन द वाटर. आयरन जो होता है वो पानी से ज़्यादा हैवी होता है और वुड जो होता है वो पानी से लाइटर, उसका वज़न कम होता है. इट इज़ लाइटर देन द वाटर. तो वुडन चीज़ें जो होती है वो पानी में फ्लोट करती है और जो आयरन की चीज़ें होती है वो पानी में सिंक हो जाती है. Now here is a table given which things which sinks and which floats. On the next page, is it magic? When Aisha woke up in the morning, Ammi had fever. Abu made some tea and went to give medicines to Ammi. He told Aisha, you boil eggs, also put some salt in the water. तो जब आयशा सुबह में उठी तो अम्मी को बुखार आ रहा था, तो उनके अबू ने चाय नाश्ता बनाया और आयशा को बोला कि यू बॉयल सम एग्स, also put some water in the also put some salt in the water. अबू ने कहा कि आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डालना.
Aisha took water in a pot. By mistake, she put too much salt in the water. She saw the eggs at the bottom of the pot came up a little and started to float in water. तो पहले जब आयशा ने वाटर में एग्स डाले तो एग्स जो थे वो नीचे सिंक हो रहे थे, नीचे बैठ गए थे। लेकिन जैसे ही आयशा ने उसमें सॉल्ट डाला तो एग्स जो थे वो फ्लोट करने लगे। Because when a salt is added to water, the water becomes thicker and it becomes heavier, इसलिए जो एग्स थे वो फ्लोट करने लगे। डेड सी, ऑल ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, द सॉल्टेस्ट ऑफ ऑल द सी इज द डेड सी। बहुत हमने देखा है कि ओशंस और सी का पानी जो होता है वो कैसा होता है, इट इज़ सॉल्टी वाटर। लेकिन सबसे सॉल्टीएस्ट सी कौन सी है, दैट इज डेड सी। उसे डेड सी क्यों कहा जाता है? हाउ सॉल्टी, इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट, इमेजिन 300 grams of salt in 1 liter of water. Would you be able to even taste such salty water? कितना पानी नमक होता है उसमें, 1 लीटर में 300 grams of salt. It would be very bitter. Interestingly, even if a person does not know how to swim, she would not drown in this sea. She will float in the water as if lying down on it. Remember the lemon you floated in salty water. तो ये डेड सी है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी इफ़ अ पर्सन डज नॉट नो टू स्विम देन ऑल्सो ही विल स्विम इन द वाटर। वो डूबेगा नहीं, वो स्विम करेगा। क्यों? बिकॉज उसमें बहुत सारा सॉल्ट है, उसका पानी थिकर है, हेवियर है। इसलिए अगर किसी को उसमें तैरना नहीं आता है तो भी वो डूबेगा नहीं, वो उसमें तैरेगा। What dissolved, what did not? On Sunday, Aisha's cousin brother Hamid came to her house to play. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite shakarpara, a sweet dish. Ammi said, "Let me come back from the market, then I will make some for you. Why don't you help me? Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it dissolves." Hamid thought, "Let me finish this work fast, then I will watch TV." तो अब हमीद जो है वो अपनी आंटी से, आयशा की मम्मी से कहता है कि आप मुझे कुछ शक्करपारा बना दीजिए। तो आंटी कहती है ओके। तो आंटी उन्हें एक काम सौंपती है। क्या कहती है कि आप थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें 1 बाउल शुगर डालिए और उसे डिज़ोल्व कर दीजिए, उसके साथ उसे मिक्स कर दीजिए। अब कैसे उसे हम मिक्स कर सकते हैं? एक तो हम उसे बहुत ज़्यादा हिलाएंगे, फिर और क्या कर सकते हैं, या तो हम पाउडर शुगर डालेंगे या तो फिर पानी को और शुगर को दोनों को हम गैस की फ्लेम पर रखेंगे ताकि वो जल्दी से गर्म हो जाए और जल्दी से शुगर जो है उसमें मेल्ट हो जाए। On the next page, page number 65. Next, the table is given that which dissolves in water and which does not dissolve. Salt, sugar ये सब dissolve हो जाती है, लेकिन चॉक, सैंड वो डिज़ोल्व नहीं होते, वो नीचे जाके सिंक हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ऑयल क्या होता है? ऑयल उसमें फ्लोट करने लगता है। तो आयशा और हमीद ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। While doing the experiment, Aisha and Hamid had an argument. Aisha felt that after stirring it, the soil dissolved in water. Hamid did not agree. He said, "Look, the tiny yellow oil drops can still be seen in the water." Aisha said, let's wait for some time and then see. तो जब वो लोग पानी और ऑयल का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आयशा कहती है कि पानी ऑयल जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और हमीद कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऑयल जो है वो पानी में फ्लोट करता है। रेसिंग ड्रॉप्स, Aisha put 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Next to that, she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilted the lid. She saw some drops slip down quickly while some were left behind. अब आयशा कुछ ड्रॉप्स जो है, रेसिंग ड्रॉप्स मीन्स कौन सा ड्रॉप्स पहले गिरता है नीचे, कौन सा ड्रॉप्स एकदम आराम से आता है, आयशा ये देख रही थी। तो उसने कौन से ड्रॉप्स लिए? ऑयल ड्रॉप, वाटर ड्रॉप एंड शुगर सॉल्यूशन। तो जब उसने ये तीनों देखे तो उसने क्या फाइंड किया
कि जो शुगर सॉल्यूशन है वो एकदम आराम से आ रहा था। फर्स्ट कौन स्लिप हुआ? वाटर। नेक्स्ट कौन स्लिप हुआ? ऑयल। और थर्ड लास्ट में कौन था? शुगर सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज इट वाज थिक देन द ऑयल एंड वाटर। On the next page, Dandi March. The incident took place in 1930. Before India became independent, for many years the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. ये कब की बात है? In the year 1930. Before India became independent. For many years the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. ब्रिटिशर्स ने क्या रूल निकाला था कि हम इंडियंस को सॉल्ट निकालने नहीं देना चाहिए, हमें वो लोग सॉल्ट निकालने को अलाउ नहीं करते थे। They had also put a heavy tax on salt. By this law, people could not make salt even for use at home. और सॉल्ट निकालने नहीं देते थे और ऊपर से वो लोग जो सॉल्ट देते थे उस पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए थे। इस वजह से हम हमारे घर में भी सॉल्ट यूज़ नहीं कर पाते थे। गांधी जी said, how a law not allow us to use freely what nature has given. तो गांधी जी ने तब आवाज़ उठाई कि ब्रिटिशर्स ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो चीज़ हमारी है, जो हमें नेचर ने दी है, वो लोग हमें कैसे मना कर सकते हैं देने के लिए। Gandhiji with several people went on a yatra from Ahmedabad to the Dandi seashore in Gujarat to protest against this law. Do you know how salt is made? The sea water is collected in shallow beds dug in the Gandhiji with several other people went on a yatra, long walk from Ahmedabad to the Dandi seashore in Gujarat to protest against this law. तो जो ब्रिटिशर्स ने ये लॉ निकाला था उसे प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी ने एक पदयात्रा निकाली। ही वेंट ऑन अ यात्रा फॉर अ लॉन्ग वॉक अहमदाबाद से दांडी तलक, अ सी शोर इन गुजरात। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड? क्या आपको पता है सॉल्ट कैसे बनाया जाता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शेलो बेड्स dug in the sand. Water is allowed to dry in the sun. The sea water is collected इन शेलो बेड्स, कुछ खड्डों में कुछ सी वाटर कलेक्ट किया जाता है। वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, फिर जो पानी भरा हुआ होता है तो सन की मदद से पानी को ड्राई किया जाता है और नीचे क्या रह जाता है? सैंड एंड सॉल्ट। आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। तो कुछ जगहों पर पानी भरा जाता है तो क्या होता है, पानी जो है वो सन की हेल्प से, सन हीट की वजह से पानी उड़ जाता है और पीछे क्या रह जाता है? सॉल्ट। दिस इज हाउ वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ओके, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड अवर chapter 7 experiments with water. Okay, thank you students.